السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری محترم مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر، اس کا احسان، اس کا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین کی نسبت پر جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو دین کی نسبت پر جمع ہونا بہت پسندیدہ ہے۔ ہم اپنے محلے میں کسی کے گھر پہ جمع ہوتے ہیں، شادی بیاہ کی نسبت پر، موت میت کی نسبت پر، اللہ کا اس پر کوئی وعدہ نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں دین کی نسبت پر جڑتے ہیں اور دین کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں، اللہ اور رسول کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میری بہنوں، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسی مجلسوں میں ہمیں بار بار جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بہنوں، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان، کرم، اس کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے۔ اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں، میری بندیوں، اپنے جسم کو دیکھو، اپنے شریر کو دیکھو، اپنی باڈی کو دیکھو، اللہ کی بے شمار نعمتیں نظر آئے گی۔ دو آنکھوں کا صحیح سالم ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دو کان کا صحیح سالم ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سانس کا آسانی کے ساتھ آنا اور سانس کا آسانی کے ساتھ جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مکان کا ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ کا ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد کا ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، شوہر کا ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بھائی بہن کا ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے قیمتی نعمت ہے، جو سب سے اہم نعمت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کا کلمہ نصیب فرمایا، اللہ پاک نے ہمیں اسلام کا کلمہ نصیب فرمایا، ہمیں ایمان نصیب فرمایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میری بہنوں، جب ہم دنیا میں پیدا ہوئے تھے تو ہمارے ساتھ بہت ساری بچیاں پیدا ہوئی تھی، کوئی کسی مذہب میں، کوئی کسی دھرم میں، کوئی کسی قوم میں۔ اللہ کا احسان، اس کا فضل کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا فرمایا جس گھر میں ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہمارے بھائی بہن مسلمان تھے، قرآن شریف ہمارے گھر میں تھا۔ ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے ایک کان میں اذان پڑھی گئی، دوسرے کان میں تکبیر کہی گئی، اور بچپن سے ہمیں ایک سبق پڑھایا گیا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ یہ سبق تمہیں زندگی میں یاد رکھنا ہے، یہ سبق تمہیں موت تک یاد رکھنا ہے کہ جو دنیا کے اندر دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے اسباب سے، دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ مت کھا جانا، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھ کے زندگی گزارنا، تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ یہ بچپن کا سبق ہمیں موت تک یاد رکھنا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ہمیں سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں کھلانے والا اللہ ہے، ہمیں پلانے والا اللہ ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں بچے دینے والی ذات اللہ کی ہے، بچے اللہ نے دیے ہیں، اولاد اللہ نے دی ہے، ماں باپ اللہ نے دیے ہیں، مکان اللہ نے دیا، کاروبار کے لیے دکان، کھیتی باڑی اللہ نے دی ہے، تمام چیزیں اللہ نے دی ہے۔ اگر ہم اس اللہ کو بھول جاوے میری بہنوں تو ہمارے لیے اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی۔
اللہ نے جب اتنی ساری نعمتیں دی ہے تو ہمیں اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے۔ جب اللہ کو پہچان لیں گے اور اللہ کی معرفت حاصل ہوگی تو میرے بہنوں، جب پہچان کسی کی ہوتی ہے اس کے بعد اس سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ کو پہچاننا ہے کہ ہمارا اللہ کیسا ہے، ہمارا اللہ کیسی طاقت والا ہے، ہمارا رب کیسی قدرت والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری بندیوں، آسمان کو دیکھو اللہ کو پہچانو، زمین کو دیکھو اللہ کو پہچانو، ہر ایک کے گھر میں بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، اس کو دیکھو اللہ کو پہچانو۔ اللہ کو کیسے پہچانیں گے کہ ہم نے بھینس کو، گائے کو، بکری کو ہر ایک کلر کا گھاس کھلایا، ہر ایک کلر کا چارہ کھلایا، اللہ پاک نے اس میں سے سفید رنگ کا دودھ بنایا، لال رنگ کا خون بنایا، اور اللہ پاک نے اس میں پیلے رنگ کا گوبر بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں میری بندیوں، ایک گلاس دودھ لے کر جب پیو تو ایک گلاس دودھ تمہارے سامنے آوے، اپنے رب کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو کہ کیسا دودھ ہے، کہ جہاں سے دودھ آتا ہے ایک طرف خون کی نالی ہے، ایک طرف گوبر کی نالی ہے، بیچ میں دودھ کی نالی ہے، ایسا صاف ستھرا دودھ باہر آتا ہے، نہ اس میں خون کی ملاوٹ ہے نہ اس میں گوبر کی ملاوٹ ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ ہمارا اللہ کر رہا ہے۔ اس اللہ کو پہچاننا ہے۔ آسمان دیکھ کر اللہ کو پہچانو۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، ایک ستون نہیں ہے، ایک پلر نہیں ہے، ایک کھمبا نہیں ہے۔ ہم اپنا چھوٹا سا مکان بناتے ہیں تو 4 ستون کھڑے کرتے ہیں، اس کے اوپر چھت آتی ہے۔ اللہ پاک نے اتنے بڑے بڑے 7 آسمان بنائے۔ یہ سورج کتنا بڑا ہے، یہ چاند کتنا بڑا ہے، یہ ستارے کتنے بڑے ہیں، یہ پہاڑ کتنے بڑے ہیں۔ تو اللہ کی مخلوق کو دیکھتے جاؤ، اللہ کو پہچانتے جاؤ، اللہ کو پہچانو کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے کیسے بنایا۔ میری بہنوں، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر بچے کو بنایا ہے۔ ماں کھانا کھا رہی ہے اور ماں کے پیٹ میں بچے کے ہاتھ بن رہے ہیں، ماں کام کر رہی ہے اور ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھیں لگ رہی ہے۔ ماں کو نہیں پتا میرے پیٹ میں کیسے بچہ بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری چلا رہا ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے بچے کو بنا رہا ہے۔ آنکھوں کی جگہ آنکھیں لگائی، کان کی جگہ کان لگایا، زبان کی جگہ زبان لگائی، ہاتھوں کی جگہ ہاتھ لگائے، پیروں کی جگہ پیر لگائے، اور جب 9 مہینے پورے ہوتے ہیں تو ایک خوبصورت بچہ، مسکراتا ہوا بچہ دنیا میں آتا ہے۔ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ ہمارا اللہ ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ تو میری بہنوں، ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے، اپنے خالق اور مالک کو پہچانو۔ جب اللہ کی معرفت حاصل ہوگی تو اللہ سے محبت ہو جائے گی، اور جب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ کے احکام پر چلنا ہمارے لیے آسان بنے گا۔ آج ماں باپ کو اولاد سے محبت ہے تو ماں باپ اولاد کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ اولاد کو ماں باپ سے محبت ہے تو اولاد ماں باپ کی باتوں کو مانتی ہے۔ ایک بچے کو، اسٹوڈنٹ کو اپنے ٹیچر سے محبت ہے تو بچہ، اسٹوڈنٹ ٹیچر کی باتوں کو مانتا ہے، اور ٹیچر اسٹوڈنٹ کی باتوں کو مانتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپس میں محبت ہوتی ہے۔ اگر ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہو جائے گی، اپنے خالق و مالک سے محبت ہوگی، تو میری بہنوں، اللہ کے حکموں پر چلنا، اللہ کی باتوں کو ماننا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان بنے گا۔ اس لیے میری بہنوں، سب سے بنیادی کام ہماری زندگی کا یہ ہے، ہم اپنے اللہ کو پہچانیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں کو، انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ جنات اور انسان، مرد اور عورتیں اپنے اللہ کو پہچانے، اپنے اللہ کی بندگی کرے، اپنے پروردگار کے سامنے ماتھا جھکائے، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اپنے اللہ سے مانگے، اپنے اللہ کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے۔ یہ میری بہنوں ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام میری بہنوں، ہمیں اپنے اللہ کو پہچاننا ہے۔ اللہ کی پہچان ہوگی، اس کے بعد اللہ سے محبت ہوگی، اور جب اللہ کی محبت دلوں میں آئے گی، اللہ کے نبی کی محبت دلوں میں آئے گی، تو اللہ کی اور اللہ کے نبی کی باتوں کو ماننا آسان ہوگا۔ سردی کا موسم ہے، صبح فجر میں ٹھنڈی پڑ رہی ہے، لحاف، کمبل، رضائی اوڑھ کے سو رہے ہیں، جب کان میں اذان کی آواز پڑے گی الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، تو اللہ کی بندی اپنے بستر سے کھڑی ہو جائے گی۔
अल्लाह की बंदी अपने बिस्तर से खड़ी हो जाएगी, रजाई को छोड़ेगी, बिस्तर को छोड़ेगी और ठंडे पानी से वुजू बनाकर या गर्म पानी से वुजू बनाकर फजर की नमाज पढ़ना आसान होगा। लेकिन ये कब होगा? जब अल्लाह की मोहब्बत दिलों में आएगी, जब अल्लाह की मारिफत होगी, अल्लाह से मोहब्बत होगी कि मेरा रब है, मेरा खालिक है और मुझे मर के उसी के पास जाना है, मर के उसी के पास जाना है। अल्लाह मुझसे जिंदगी का सवाल पूछेगा, हिसाब किताब लेगा, मुझे अपने रब से अल्लाह का मुझे अपने रब को हिसाब देना है। जब ये सारी बातें मेरी बहनों हमारे सामने रहेगी तो अल्लाह की बातों को मानना, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना हमारे लिए आसान बनेगा। इसलिए हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कलमे का जो पहला सेंटेंस है, जो पहला जुमला है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? यही तो है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई रोजी देने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बीमारी देने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई सेहत देने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई शिफा देने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बारिश बरसाने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई औलाद देने वाला नहीं, सब कुछ देने वाली जात अल्लाह की है। ये कलमा दिलों में उतर जाए। कलमा तो हम जबान से पढ़ते हैं, लेकिन कलमे की हकीकत हमारे दिल में आ जावे। असल तो ये है, ईमान इसी का नाम है कि कलमे की हकीकत हमारे दिल में आ जावे। जबान तो कहती है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, लेकिन जबान के साथ साथ दिल अंदर से कहे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह हमारी हर जरूरतों को पूरा करने वाला है, अल्लाह ताला इज्जत के नक्शों में जलील करने वाला, जिल्लत के नक्शों में इज्जत देने वाला, नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है, मौत और जिंदगी का मालिक अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहे मालदार बना दे, अल्लाह जिसे चाहे गरीब बना दे, अल्लाह जिसे चाहे गोरा बना दे, अल्लाह जिसे चाहे काला बना दे। ये सारी चीजों का मालिक अल्लाह है। ये मौसम का बदलना, कभी बारिश का मौसम, कभी सर्दी का मौसम, कभी गर्मी का मौसम, ये रात का आना और दिन का जाना, ये मौसमों की तब्दीली, दिन का निकलना, रात का जाना, सूरज का निकलना, सूरज का डूबना, चांद का निकलना, चांद का डूबना, ये सारा निजाम मेरी बहनों अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। ये हमारा दिल कहे, जुबान से तो कहते हैं लेकिन दिल से नहीं कहते हम। दिल हमारा अंदर से बोले कि सब कुछ करने वाली जात एक अल्लाह की है। इसी का नाम ईमान है। इसीलिए ईमान का पहला जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, माथा उसी के सामने झुकेगा, हाथ उसी के सामने उठाएंगे, हमारी जरूरतों को उसी के सामने रखेंगे, नजरो नियाज अल्लाह के नाम पर, दुआएं उसी से मांगी जाएगी, औलाद अल्लाह से मांगी जाएगी। किसी मजार पे जाकर, किसी अल्लाह वाले से जाकर, किसी मौली साहब से जाकर, किसी तावीज डोरे से कुछ नहीं होता, करने वाली जात अल्लाह की है। ये हमारा यकीन बन जावे। और जब अंदर का यकीन बनता है ना करने वाली जात अल्लाह की है, तो मेरी बहनों जिंदगी गुजारने का मजा आता है। अल्लाह के हुक्मों पर चलना आसान होता है, अल्लाह की बातों को मानना आसान होता है। सर्दी के मौसम में फजर की नमाज का पढ़ना आसान, गर्मी के मौसम में जोहर की नमाज का पढ़ना आसान। हमारी आंखों का देखना सही होगा, जबान के बोल सही होंगे, कानों का सुनना सही होगा, सास बहू का आपस का मामला सही होगा, सास बहू को बेटी समझेगी और बहू सास को मां समझेगी, देरानी जेठानी का मामला सही होगा, मियां बीवी का मामला सही होगा, औलाद का माँ बाप का और माँ बाप का औलाद का ताल्लुक मजबूत बनेगा, आपस में मोहब्बतें आएगी जब ईमान और कलमे की हकीकत दिल में उतरेगी। ये सारी चीजें इसी पे निर्भर करती है। इसलिए मेरी बहनों अपने ईमान को मजबूत करो, कलमे की हकीकत को पहचानो, कलमे को अपने दिल में उतारो। जब कलमा दिल में उतरेगा तो मैंने कहा आंखों का देखना सही होगा। हम अपनी आंखों से वो देखेंगे जिसको देखने का अल्लाह ने हुक्म दिया, जिसको देखने को अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, उन चीजों से रुकेंगे जिससे अल्लाह ने मना फरमाया। हम अपने कानों से किसी के बारे में झूठ नहीं सुनेंगे, किसी की गिबत नहीं सुनेंगे, किसी की चुगली नहीं सुनेंगे, अपने कानों से कुरान सुनेंगे, अपने कानों से अल्लाह वालों की बातें सुनेंगे, अपने कानों से अल्लाह रसूल की बातें सुनेंगे। हम कानों से किसी की गिबत, किसी की बुराई नहीं सुनेंगे। जब ईमान दिल में उतरेगा तो जबान के बोल सही होंगे,
اپنے بول اپنی زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہوگا، استغفار ہوگا، اچھی باتیں ہوگی، ہم زبان سے دو بہنوں کو آپس میں نہیں لڑوائیں گے، میاں بیوی میں آپس میں توڑ نہیں کرائیں گے، ماں باپ کو اولاد سے اور اولاد کو ماں باپ سے دور نہیں کریں گے، ساس کو بہو کے خلاف، بہو کو ساس کے خلاف نہیں بھڑکائیں گے۔ جب ہماری زبان صحیح ہوگی، جب ایمان دل میں اترے گا، اللہ کا خوف ہوگا کہ مرنا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے۔ اگر دنیا میں نے دو بہنوں کو لڑا دیا آپس میں، تو دو بہنوں میں توڑ ہو گیا، میاں بیوی میں توڑ ہو گیا، اولاد میں ماں باپ میں نفرت ہو گئی، قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ قبر میں میرا کیا بنے گا؟ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے رہوں گی تو اللہ مجھے پوچھے گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ ساری سوچ، تقوی اور فکر اور خوف اللہ کا کب آئے گا؟ جب ایمان ہمارے دل میں اترے گا۔ اسی لیے میری بہنوں، سب سے پہلی چیز ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور کلمے کی حقیقت کو دل میں اتارے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عہدہ دے، کرسی دے، حکومت دے، وہ جسے چاہے کرسی پر سے نیچے اتار دے۔ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ کی ذات وہ ہے جسے چاہے لڑکے پر لڑکے، لڑکے پر لڑکے دے، کسی کے 4 لڑکے، کسی کے 5 لڑکے، لڑکی ایک بھی نہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو جسے چاہے لڑکیوں پر لڑکیاں دے، کسی کی 4 لڑکیاں، کسی کی 5 لڑکیاں، لڑکا ایک بھی نہیں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اللہ کی ذات وہ ہے جو لڑکے بھی دے، لڑکیاں بھی دے، 2 لڑکے 2 لڑکیاں، 3 لڑکے 2 لڑکیاں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ کی ذات وہ ہے جو کسی کو کچھ بھی نہ دے، نکاح کرے، شادی کرے، 15 سال ہو گئے، گود میں ایک بھی بچہ نہیں، نکاح کرے 20 سال ہو گئے، گود میں ایک بھی بچہ نہیں، تو اللہ جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ سارا نظام میرے بہنوں اوپر سے چلتا ہے، کسی تعویذ میں کچھ نہیں رکھا، کچھ نہیں رکھا۔ یہ یقین ہمارا اندر سے بن جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، اولاد کا دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ یقین ہمارا اندر سے بنے گا تو جب حالات آئیں گے، پریشانیاں آئے گی، بیماری آئے گی، تو ہم پہلے مصلی بچھا کر اللہ سے مانگیں گے، اس کے بعد میں دعا کریں گے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا ایمان کمزور ہے تو ہمارا حال یہ ہے، جہاں ماتھا دکھنے آیا فوراً ڈاکٹر کے پاس، پیٹ میں درد ہوا فوراً ڈاکٹر کے پاس، اور کوئی حالات آ گئے تعویذ ڈورے کے چکر میں پڑتے ہیں۔ ارے نہیں، یہ اسباب ہے، ان کو اختیار بعد میں کریں گے، پہلے ہمارا تعلق اللہ سے جڑے گا، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے، اپنی پرابلم کو اللہ کے سامنے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس پرابلم کو دور کرے گا۔ صحابہ کا اور صحابیات کا معاملہ یہی تھا کہ صحابہ اور صحابہ کی عورتوں کے سامنے جب دنیا کے حالات آتے تھے، گھر میں غریبی آ گئی، مصلی بچھایا، گھر میں فقر و فاقہ آ گیا، مصلی بچھایا، بچے کا انتقال ہو گیا، مصلی بچھایا، اور کوئی پریشانی ہے، مصلی بچھایا، شوہر بیمار ہو گیا، مصلی بچھایا، ماں باپ پر کوئی حالات آئے، مصلی بچھا کر اللہ سے مانگا۔ صحابہ اللہ سے مانگنے والے تھے، اور صحابہ کی عورتیں اللہ سے مانگتی تھی تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کے ذریعے ان کے مسائل کو حل کرتا تھا، ان کے پرابلم کو دور کرتا تھا۔ آج میرے بہنوں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم اسباب کی طرف جاتے ہیں، سبب کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ سبب تو ایک ذریعہ ہے، اسباب تو ایک واسطہ ہے، پہلے ہماری نظر اللہ کی ذات پر ہو، اس کے بعد میں ہم سبب کو اختیار کریں۔ میری بہنوں، یہ جبھی ہوگا جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، کلمہ اندر اترے گا، کلمے کی حقیقت دل میں آئے گی تو اللہ کے حکموں پر چلنا اور اللہ کی باتوں کو ماننا میری بہنوں آسان بنے گا۔ ہماری آنکھوں میں شرم و حیا رہے گی، ہم غیر محرم سے بات نہیں کریں گے، اپنی آواز کو اتنا پست کریں گے، اتنا آہستہ بولیں گے کہ ہماری آواز کسی پرائے مرد کے کان میں نہ جاوے۔ قیامت میں مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ تو میری بہنوں، یہ ساری چیزیں زندگی میں جو آئے گی نا، اخلاق اچھے بنیں گے، اعمال اچھے بنیں گے، معاملات صحیح ہوں گے، ہم اولاد کی صحیح تربیت کریں گے،
ये जब बनेगा जब हमारा ईमान मजबूत बनेगा। इसलिए मेरी बहनों, अपने ईमान को मजबूत करें, अपने ईमान को मजबूत करे, अल्लाह से सच्ची पक्की मोहब्बत करे, अल्लाह के नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत करे, और आखिरत का खौफ हमारे सामने हो। जिंदगी तो खत्म हो जाएगी। हम कब्रिस्तान में जाकर देखें कितनी औरतें सो रही है, कितनी औरतें सो रही है। हमें भी एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है। यह दुनिया धोखा है। दुनिया में न कोई हमेशा रहा है न कोई हमेशा रहेगा। आज वो गई तो कल मैं जाऊंगी। हर एक को एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है। आज किसी का जेवर टूटा है, कल मेरा जेवर निकाला जाएगा। आज किसी का जोड़ा फाड़ा गया, कल मेरा जोड़ा फाड़ा जाएगा। आज किसी का घर उजड़ा है, कल मेरा घर उजड़ जाएगा। आज किसी की औलाद रो रही है, कल मेरी औलाद भी रो रही होगी। आज कोई औरत बेवा हुई है, कल मुझे भी बेवा होना है। मेरी बहनों, दुनिया में हमेशा रहने कोई नहीं आया। यह दुनिया धोखे का घर है, यह दुनिया धोखे का घर है। इसीलिए शकिया कहा कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। रोजाना हम ऐलान सुनते हैं ना कि आज वहां पर इसका इंतकाल हो गया, आज खानपुरा में उस बहन का इंतकाल हो गया, आज रामसर में उस बहन का इंतकाल हो गया। मेरी बहनों, ये ऐलान सुनकर अपनी मौत को याद करो कि हमारा भी ऐलान होगा, हमारा भी ऐलान होगा कि हमें भी मरना है। ऐलान होगा कि फुला बहन का इंतकाल हो गया, फुला बहन दुनिया छोड़ के चली गई, उसके छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। ये हमारे साथ भी होगा। तो ये आखिरत का खौफ कब आएगा? ये आखिरत का इस्तिहजार कब आएगा? ये मौत का यकीन कब पैदा होगा? कब्र का खौफ जिंदगी में कब आएगा? जब मेरे बहनों ईमान हमारा मजबूत होगा, अल्लाह और अल्लाह के नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत होगी, तो हम कब्र की तैयारी करेंगे। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अकियसुन्नास, लोगों में, औरतों में, मर्दों में सबसे चालाक कौन है? सबसे ज्यादा होशियार कौन है? सबसे ज्यादा समझदार कौन है? मेरे नबी ने जवाब दिया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत। सबसे चालाक बहन वो है, सबसे चालाक खातून वो है, सबसे होशियार औरत वो है जो कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी करे। कब्र की तैयारी, मुझे मरना है, कब्र की अंधेरी कोठरी में जाना है, वहां कोई किसी के काम नहीं आएगा। न माल काम आएगा, न दौलत काम आएगी, न औलाद काम आएगी, न शोहर काम आएगा, न बच्चे काम आएंगे, न माँ बाप काम आएंगे। वहां मैं रहूंगी, मेरे अमाल होंगे। जैसे अमाल किए होंगे वैसा बदला मिलेगा। अगर अच्छे अमाल किए हैं तो अच्छा बदला है, और अगर बुरे अमाल किए हैं, अल्लाह को नाराज किया है, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को छोड़ा है, और बेपर्दा बाजारों में घूमी है, और घर से बेपर्दा बाहर निकली है, और अपनी आवाज को पराये मर्दों ने सुना है, तो मेरी बहनों, कब्र में पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। पहले जमाने में, आज से 1200 साल पहले एक औरत गुजरी है, अल्लाह की वलिया थी, अल्लाह की नेक बंदी थी, जिसकी जिंदगी में अल्लाह की मोहब्बत थी, जिसके दिल में अल्लाह के नबी का इश्क था, उनके दिल में ईमान उतर चुका था। उन औरत का नाम है हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा। बहुत बड़ी अल्लाह की वली गुजरी है, बहुत बड़ी अल्लाह की वली। उनकी शादी हुई। जब शादी हो गई तो जब रात का वक्त होता था तो अपने शोहर के पास आती और आकर कहती थी, मेरे शोहर, मेरे सरताज, अगर आपको मुझसे कोई जरूरत है तो बताइए। शोहर कहता कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा मुसल्ला बिछाती और रात भर मुसल्ले पर खड़ी होती, अल्लाह के सामने रोती, अल्लाह से मांगती, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाती, अपने तमाम जरूरतों को अल्लाह के सामने रखती, और रात भर नवाफिल में, तहज्जुद में गुजार देती। और जब सुबह का चांदना हो जाता तो राबिया बसरिया अल्लाह के सामने कहती थी, ओ मेरे परवरदिगार, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे खालिक, जो तूने आसमान को जमीन पर गिरने से रोके रखा है, ए मेरे मौला, शैतान को और दुनिया की मोहब्बत को मेरे दिल में आने से रोके रखना। मेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत ना आवे, मेरे दिल में अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की मोहब्बत ना आवे, मेरे दिल में सोने चांदी के जेवर पहनने की मोहब्बत ना आवे, मेरे दिल में अच्छे अच्छे मकान और अच्छा अच्छा खाने की मोहब्बत ना आवे,
मेरे दिल में अल्लाह सिर्फ तेरी मोहब्बत हो, मेरे दिल में तेरे महबूब नबी की मोहब्बत हो, अल्लाह मेरे दिल में कुरान की मोहब्बत हो, अल्लाह मेरे दिल में तेरे दीन की मोहब्बत हो। राबिया बसरिया दुआ किया करती थी। जवानी की हालत में बेवा हो गई, उनके शोहर का इंतकाल हो गया। लिखा है उलमा ने, आज से 1200 साल पहले का वाकया है, 1200 साल पहले का, लेकिन अल्लाह की वलिया थी, आज उनके तज़किरे मौजूद है उलमा की जुबान पर, किताबों में उनके वाकयात भरे पड़े हैं कि राबिया बसरिया कैसी अल्लाह की वली थी, हबशा की रहने वाली थी, हबशा की रहने वाली। चेहरा इतना खूबसूरत नहीं था, इतना कबूल सूरत नहीं था, लेकिन चेहरे पर इबादत का नूर था, दिल साफ था, दिल में किसी के बारे में दुश्मनी नहीं थी, दिल में किसी के बारे में हसद नहीं था, दिल में किसी के बारे में खोट नहीं थी, दिल के अंदर किसी के बारे में कोई गलत सोच नहीं था, बल्कि दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत थी, दीन की मोहब्बत थी, अल्लाह के अहकाम की मोहब्बत थी। और इसका असर यह था कि उनका चेहरा काला था, लेकिन इबादत का नूर चेहरे पर चमक रहा था। जब शौहर का इंतकाल हो गया और जब इद्दत पूरी हो गई, तो उस जमाने के बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह। हसन बसरी, आपने नाम सुना होगा, हसन बसरी बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े फकीह और बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने राबिया बसरिया को खत लिखा कि राबिया, तुम्हारी इद्दत पूरी हो गई, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मेरी बहनों, अगर शौहर का इंतकाल हो जावे तो शादी करने में कोई मसला नहीं है, शादी कर सकते हैं। तो आज हमारे समाज का जुल्म है, आज हमारे मुआशरे का हाल यह है कि किसी बहन का जवानी में इंतकाल हो जावे उसके शौहर का, और बहन बेवा हो गई, तो आज हमारा समाज उसको दूसरी शादी करने नहीं देता। हालांकि जुल्म है, दूसरी शादी कर देनी चाहिए। तो राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा को हसन बसरी ने खत लिखा कि राबिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो सुनो मेरी बहनों, राबिया ने जवाब क्या लिखा? राबिया ने खत का जवाब लिखा और कहा कि हसन, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी, लेकिन मुझे पहले मेरे 4 सवालों का जवाब दे दो। अगर तुमने 4 सवाल का सही सही जवाब दे दिया तो हसन, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। एक कमरे में राबिया बैठी है, बीच में पर्दा लगा दिया, एक तरफ हसन बसरी बैठे हैं। हसन बसरी भी अल्लाह वाले हैं, राबिया भी अल्लाह की वली है। एक तरफ राबिया है, बीच में पर्दा है, एक तरफ हसन बसरी है। हसन बसरी ने पूछा कि राबिया, पूछो तुम्हारा पहला सवाल क्या है, तुम्हारा पहला सवाल क्या है? तो राबिया ने सवाल किया, हसन, मेरा पहला सवाल यह है, कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, लोग अपने पसीने में डूबे हुए होंगे, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन आग उगल रही होगी। ऐसे मौके पर अल्लाह ताला बाज लोगों के बारे में जन्नत का फैसला फरमाएंगे और बाज लोगों के बारे में जहन्नम का फैसला फरमाएंगे। हसन बताओ, जब मेरे बारे में फैसला होगा तो क्या मैं जन्नत में जाने वालों के साथ होंगी या मैं जहन्नम में जाने वालों के साथ होंगी? मेरा फैसला जन्नत में जाने वालों का होगा या मेरा फैसला जहन्नम में जाने वालों के साथ होगा? हसन, मेरे इस सवाल का जवाब दे दो। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया, राबिया, इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं कैसे कह सकता हूं कि तुम्हारा फैसला इधर होगा या तुम्हारा फैसला उधर होगा? राबिया ने कहा, हसन, मेरा दूसरे सवाल का जवाब दे दो। मेरा दूसरा सवाल यह है, कल कयामत के दिन पुलसिरात को जहन्नम पर बिछाया जाएगा, पुलसिरात जहन्नम पर बिछाई जाएगी, 1500 साल का रास्ता होगा, तलवार से तेज, बाल से बारीक होगी, उस पुलसिरात पर से हर एक को गुजरना होगा, हर एक को चलना होगा जो नेक होगा, जिसने ईमान की हकीकत को दिल में उतारा होगा, जिसने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी, जिसने अल्लाह को राजी किया होगा, अल्लाह के नबी को राजी किया होगा और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारी होगी, वो अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी उस पुलसिरात पर से गुजरकर जन्नत में चले जाएंगे। और जिसने अल्लाह को नाराज किया होगा, अल्लाह की नाफरमानी की होगी, वो कटकर नीचे जहन्नम में गिर जाएंगे। हसन बताओ, जब मैं पुलसिरात पर से गुजरूंगी तो क्या मैं गुजर के पार हो जाऊंगी या मैं कटकर जहन्नम में गिर जाऊंगी? जरा सोचो मेरी बहनों, एक औरत है लेकिन सोच कैसी है, एक औरत है लेकिन फिक्र कैसी है, एक औरत है लेकिन ख्यालात कैसे है, कब्र का खौफ है, आखिरत की फिक्र है, पुलसिरात की याद है।
मेरे बहनों, आज हमें न मौत की याद आती है न कब्र की याद आती है। हम दुनिया में ऐसे मस्त है, कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में, अच्छे अच्छे जेवर पहनने में, शादियां मनाने में, खुशियां मनाने में, ईरान तुरान की बातों में। मेरे बहनें, हम ऐसी मस्त है, ऐसी मस्त है, न हमें कभी कब्र की याद आती है न आखिरत की याद आती है। तो दूसरा सवाल क्या किया कि पुल सिरात पे से मैं गुजर जाऊंगी या कड़ के जहन्नम में गिर जाऊंगी। हसन बसरी ने फरमाया, राबिया, मेरा इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। राबिया ने कहा, हसन तीसरा सवाल, मेरे तीसरे सवाल का जवाब दे दो। मेरा तीसरा सवाल यह है, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला नामा आमाल लोगों के हाथों में देंगे। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिहि फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा। जिसको नामा आमाल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा, उसके राइट हैंड में दिया जाएगा, वो तो खुश खुश होकर पुकारेगा, खुश खुश हो जाएगा कि मैं तो कामयाब हो गया। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिहि फसौफ यदउ सुबूरा। और जिसको उसका नामा आमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, उसके उल्टे हाथ में दिया जाएगा, वो मौत मौत को पुकारेगा, लेकिन वहां मौत नहीं आएगी। राबिया ने कहा, हसन तीसरा सवाल, अल्लाह कयामत के दिन नामा आमाल हर एक के हाथ में देगा, किसी के सीधे हाथ में, किसी के बाएं हाथ में। बताओ, जब मेरा अमल नामा मुझे दिया जाएगा तो सीधे हाथ में दिया जाएगा या उल्टे हाथ में दिया जाएगा? हसन बसरी ने कहा, राबिया, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। राबिया ने पूछा, हसन चौथा सवाल, मेरे चौथे सवाल का जवाब दे दो, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। चौथा सवाल मेरा यह है, कयामत में अल्लाह ताला एक तराजू क्यों कायम करेंगे? एक तराजू रखी जाएगी जिसके दो पलड़े होंगे, एक पलड़े में नेकियां तोली जाएगी, दूसरे पलड़े में गुनाह तोले जाएंगे। एक पलड़े में अच्छे काम रखे जाएंगे, दूसरे पलड़े में बुरे काम रखे जाएंगे। और जिसका जौन सा पलड़ा झुक जाएगा, अगर अच्छाई वाला पलड़ा झुक गया तो जन्नत का फैसला होगा, अगर बुराई वाला पलड़ा झुक गया तो जहन्नम का फैसला होगा। हसन बताओ, जब मेरे आमाल नामे तोले जाएंगे तो मेरा नेकियों वाला पलड़ा झुकेगा या बुराइयों वाला पलड़ा झुकेगा? हसन बसरी ने कहा, राबिया, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मेरे बहनों, राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ने फरमाया, हसन जाओ अपना काम करो, मुझे शादी वादी नहीं करनी, मुझे तो इन 4 सवाल की तैयारी करनी है। 4 सवाल की तैयारी करनी है, मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी बहनों, ये 4 सवाल हमारे लिए भी है। कयामत में हमारे बारे में फैसला होगा जन्नत का या जहन्नम का, इसकी फिक्र हमें भी करनी है। कयामत में पुल सिरात पे से हमें भी गुजरना है और कयामत में आमाल नामा हमारे हाथ में भी दिया जाएगा, किसी के सीधे हाथ में, किसी के उल्टे हाथ में। और कयामत में नेकियों का वजन हमारा भी होगा, किसी की नेकियों का पलड़ा झुकेगा, किसी की बुराइयों का पलड़ा झुकेगा। मेरी बहनों, राबिया ने कहा, हसन इन 4 सवाल के मुझे जवाब की तैयारी करनी है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मेरी बहनों, एक औरत है लेकिन फिक्र कैसी है, एक औरत है लेकिन सोच कैसी है। मेरी बहनों, आप भी तो फिक्र कर सकती है, आप भी तो कब्र की तैयारी कर सकती है, आप भी तो अच्छे काम कर सकती है जिससे अल्लाह राजी हो जावे। हम हर उस काम से बचे जिससे अल्लाह नाराज होता हो। इसलिए मेरी बहनों, नीयत करो कि अल्लाह को राजी करने वाले काम करेंगे। जिन कामों से अल्लाह नाराज होता हो, जिन कामों से अल्लाह के नबी नाराज होते हो, हम उन कामों को नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जावे। जब हम इस तरह जिंदगी गुजारेंगे तो मेरे बहनों, मौत के वक्त कलमा नसीब होगा, कब्र हमारे लिए जन्नत का बाग बनेगी और हशर के मैदान में अल्लाह के नबी की सिफारिश नसीब होगी और हमेशा हमेश की जन्नत का दाखिला नसीब होगा। लेकिन शर्त यह है, हमें अपनी जिंदगी को बनाना होगा। हमारे कितने साल गुजर गए, किसी बहन के 30 साल गुजर गए, किसी के 40 साल गुजर गए, किसी के 50 साल गुजर गए, किसी के 60 साल गुजर गए। मेरी बहनों, पिछली जिंदगी से तौबा करो, अल्लाह के सामने रो, अल्लाह के सामने उठकर, अल्लाह मुझसे कुछ नहीं हुआ, अल्लाह हाय मेरे 60 साल गुजर गए, मेरे 50 साल गुजर गए, मैंने तुझे नाराज किया है, गुनाह किए है, अल्लाह मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह तू माफ कर दे। अल्लाह के सामने जब 2 आंसू बहाएंगे, अल्लाह ताला को अपनी बंदी के 2 आंसू सबसे ज्यादा कीमती है, पसंद है। जब हमारे आंखों से आंसू निकलेंगे, अल्लाह ताला गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन शर्त है मेरी बहनों, हम सच्चे दिल के साथ अल्लाह से तौबा करें। सर्दी का मौसम है,
अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सर्दी का मौसम तो ईमान वालों के लिए, मुसलमान मर्दों के लिए, मुसलमान औरतों के लिए एक मौसम बहार है, एक बहार का मौसम है। दिन छोटा होता है, रोजा रखना आसान है, रात लंबी होती है, तहज्जुद पढ़ना आसान है। मेरी बहनों, आपके रमजान के रोजे छूट गए हो उजर की वजह से, उन रोजों को कजा करो। कजा रखना जरूरी है। अगर रोजे जिम्मे थे और हमारा इंतकाल हो गया, चले गए, तो खुदा के वहां हिसाब देना पड़ेगा। सर्दी के मौसम में दिन छोटा होता है, प्यास कम लगती है, भूख कम लगती है, दिन छोटा होता है, तो रोजा रखना आसान है। रमजान के जितने रोजे छूटे हमारे, एक एक रोजे की कजा करो, कितना आसान है। और अगर हमारे रोजे नहीं छूटे हैं, हमने कजा कर लिए, हमारे जिम्मे को रोजा बाकी नहीं है, तो मेरी बहनों नफल रोजे रखा करो, नफल रोजे। मेरे नबी की आदत थी, हमारे नबी हर सोमवार को रोजा रखा करते थे, हमारे नबी हर जुमेरात को रोजा रखा करते थे, हमारे नबी इस्लामी तारीख के एतबार से हर महीने की 13, 14, 15 3 दिन के रोजा रखा करते थे। हम भी तो नफल रोजा रख सकते हैं, हम भी रखे, साथ में शोहर को भी रखा है, क्या मुश्किल है। लेकिन मेरे बहनों, जब आखिरत का खौफ आएगा ना, जब आखिरत का खौफ आएगा, कब्र की फिक्र आएगी, अल्लाह का खौफ आएगा, अल्लाह की मोहब्बत आएगी, तो ये सारे आमाल करना हमारे लिए आसान बनेगा। इसलिए मेरी बहनों, मेरी आपसे गुजारिश है, हम अपनी जिंदगियों में ईमान को दाखिल करें, ईमान की हकीकत को दिल में उतारे। जब ईमान सच हकीकत के साथ दिल में उतरेगा, तो मेरी बहनों, जबान का बोल सही होगा, आंखों का देखना सही होगा, कानों का सुनना सही होगा। हम शोहर की फरमाबरदारी करेंगे, शोहर की बात को मानेंगे, शोहर की नाफरमानी नहीं करेंगे। हम बच्चों की सही तरबियत करेंगे, हम सास ससुर को अपने माँ बाप समझेंगे, हम अड़ोस पड़ोस के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। ये सारी चीजें जब आएगी मेरी बहनों, जब हमारा ईमान अंदर उतरेगा। अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा ईद के मौके पर औरतों में बयान किया, औरतों में जहां मस्तूरात बैठी थी, उन मस्तूरात में अल्लाह के नबी ने खिताब किया और क्या फरमाया, या माशरन निसा, ए औरतों की जमात। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हमारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सरकार दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या माशरन निसा, ए औरतों की जमात, तसद्दकना, सदका खूब किया करो। एक औरत ने पूछा, अल्लाह के नबी, औरतें सदका खूब क्यों किया करे? तो आपने फरमाया, मैंने जहन्नम में औरतों को ज्यादा जाते हुए देखा है, औरतें जहन्नम में ज्यादा जा रही थी। पूछा कि अल्लाह के नबी, इसकी वजह क्या है? तो आपने फरमाया कि औरतों में 2 खराबियां हैं, औरतों में 2 बुराइयां हैं, औरतों में 2 बीमारियां हैं। पहली बीमारी यह है कि औरतें शोहर की नाफरमानी बहुत करती है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि औरतें अपने शोहर का दिल दुखाती है, औरतें अपने शोहर की नाफरमानी बहुत करती है, जिसकी वजह से औरतें जहन्नम में ज्यादा जाएगी। और औरतों में दूसरी बीमारी यह है कि औरतें थारी मारी बहुत करती है, औरतें एक दूसरे की गिबत बहुत करती है, औरतें एक दूसरे पर लान तान बहुत करती है, औरतें एक दूसरे को बद्दुआएं बहुत देती है। ये वो खतरनाक गुनाह है जिसकी वजह से औरतें जहन्नम में ज्यादा जाएगी। मेरी बहनों, इसको छोड़ो। हमारी जबान से कोई झूठ ना निकले, हमारी जुबान से किसी के बारे में गिबत ना निकले, हमारी जबान से किसी के बारे में कोई गलत बात ना निकले। हमारी जुबान पर अल्लाह का जिक्र हो, हमारी जुबान पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ हो, हमारी जबान पर इस्तिगफार हो। तो मेरी बहनों, हम शोहर की फरमाबरदारी करें, अपनी औलाद की सही तरबियत करें, ये माँ की जिम्मेदारी है। इसलिए कहा गया कि माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। माँ जैसा बच्चे को सिखाएगी, बच्चा बड़ा होकर वैसा बनेगा। आज हम ख्वाब तो देखते हैं कि हमारा बच्चा जो है अल्लाह का वली बन जावे, हमारी बच्ची अल्लाह की वलिया बन जावे, उसका कैरेक्टर अच्छा हो, उसके अखलाक अच्छे हो। लेकिन मेरे बहनों, उसके लिए मेहनत माँ को करनी पड़ेगी। माँ की प्राथमिकता है, माँ की जिम्मेदारी है कि बचपन से, जब छोटा बच्चा हो, उस वक्त से जो है बच्चे की सही तरबियत करे। आप किताबों को पढ़े, जितने अल्लाह के वली बने हैं, चाहे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हो, जितने अल्लाह के वली बने हैं, उन तमाम के पीछे माँ का अहम रोल है, माँ का अहम किरदार है। वो तमाम वली बने हैं माँ की गोद में।
माँ ने उनकी सही तरबियत की है, माँ ने उनको अल्लाह की पहचान कराई, माँ ने इनको दीन सिखाया, माँ ने इनको कुरान पढ़ना सिखाया, माँ ने बच्चों को सच बोलना सिखाया, माँ ने बच्चों को झूठ से बचाया, माँ ने बच्चों को गलत कामों से बचाया, तो बच्चे बड़े होकर अल्लाह के वली बने। आज हमारा 5 साल का बच्चा खड़ा खड़ा पेशाब करता है लेकिन माँ कुछ नहीं कहती। आज हमारा 6 साल का बच्चा मोबाइल में गेम खेल रहा है, मोबाइल में गलत चीजें देख रहा है, लेकिन माँ कुछ नहीं बोलती, बल्कि माँ खुद बच्चे को मोबाइल देती है और बच्चा मोबाइल में ड्रामे देख रहा है, फिल्में देख रहा है, गाने सुन रहा है, सीरियल देख रहा है, गंदी गंदी तस्वीरें फोटो देख रहा है, लेकिन माँ अपने बच्चे को कुछ नहीं कहती। मेरी बहनों, हमारी औलाद कहाँ जाएगी? क्या ये बड़ी होकर हमारी फरमाबरदार बनेगी? हरगिज नहीं बनेगी। बचपन से जैसा हम औलाद को सिखाएंगे, औलाद बड़ी होकर माँ बाप की फरमाबरदार बनेगी, माँ बाप की आंखों की ठंडक बनेगी, और माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद यही औलाद माँ बाप की कब्रों पर जाकर फातिहा पढ़ने वाली बनेगी, माँ बाप को दुआओं में याद रखेगी, माँ बाप के लिए सदका जारिया बनेगी। लेकिन शर्त यह है कि बचपन से माँ बाप ने जब औलाद को सही सिखाया होगा। इसलिए मेरी बहनों, वक्त बहुत हो गया, तो मेरी एक पहली बात जो मैंने आपसे कही थी कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, ईमान की हकीकत को दिल में उतारे, अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की मोहब्बत को दिल में लावे। जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा होगी तो अल्लाह के हर हुक्म को मानना आसान होगा। और अल्लाह के हुक्मों में सबसे अहम हुक्म नमाज है। मेरी बहनों, नमाज सबसे इंपॉर्टेंट है। नमाज जैसी अहम इबादत कोई नहीं है। अजान हो जाए फौरन नमाज पढ़ो। हम क्या करती है, अजान हो रही है, कभी खेत में काम हो रहा है, कभी घर में पोछा लग रहा है, कभी घर में बर्तन धुल रहे हैं, बाद में पढ़ लेंगे। नहीं, अजान के साथ सब काम छोड़ दो। कपड़े धो रही हो, कपड़े धोना बंद करो। घर की सफाई कर रही हो, सफाई करना बंद करो। खेत में चारा काट रही हो, चारा काटना बंद करो। मेरे अल्लाह ने मुझे बुलाया है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मेरा अल्लाह मुझे बुला रहा है। अब मेरा पहला काम, मैं सबसे पहले नमाज पढ़ूंगी। वक्त पे नमाज पढ़ो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सबसे अफजल अमल यह है कि नमाज को उसके वक्त पर पढ़ा जाए। अजान हो गई, फौरन नमाज पढ़ लो। आपको नमाज मस्जिद में थोड़ी पढ़ना है, घर में पढ़ना है, तो आपके लिए वक्त पर नमाज पढ़ना कितना आसान है। अजान हो गई, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले नमाज, बाद में सारे काम। जब आप नमाज पढ़ोगी तो आपके साथ आपकी बच्चियां नमाज पढ़ेगी। आपके 5 साल का बेटा है, 6 साल का बेटा है, 5 साल की बच्ची है, उनको अपने साथ नमाज में खड़ा करो। जब बच्ची माँ को देखेगी तो बच्ची नमाज पढ़ेगी। जब बेटा बाप को देखेगा तो बेटा नमाज पढ़ेगा। आज मेरी बहनों, हमारे घरों में बेनमाजी कितने हैं, कितने बेनमाजी है। यह मस्जिद कितनी बड़ी है, लेकिन फजर की नमाज में 2 सफ बनती है। बाकी मुसलमान कहाँ गए? इस मस्जिद के अतराफ में 200 घर मुसलमानों के हैं। मेरी बहनों, जरा सोचो, हमारा बाप बेनमाजी, हमारा शोहर बेनमाजी, हमारा जवान बेटा बेनमाजी, 12 साल के बच्चे बेनमाजी, हमारे घर में अल्लाह की रहमतें कैसे आएगी? हमारे घर में बरकतें कैसे आएगी? हमारे घर में मोहब्बतें कैसे पैदा होगी? नहीं हो सकती है। हम दीन पर खुद चले, अपनी औलाद को दीन पर चलावे, नमाज खुद पढ़े, अपनी औलाद को नमाजी बनावे, फिक्र के साथ उठाओ। इसलिए हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तुम्हारा बच्चा या जब तुम्हारी बच्ची 7 बरस की हो जावे, 7 बरस की हो जावे, नमाज का हुक्म करो। जरा सोचे, जब बच्चा तुम्हारा 7 बरस का हो जावे, नमाज का हुक्म करो। और जब तुम्हारा बच्चा 10 बरस का हो जावे और नमाज न पढ़े, नमाज न पढ़ने पर मारा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हमने अपने बच्चे को थप्पड़ मारा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ता? नहीं, हमने नहीं मारा। मेरे बहनों, औलाद से मोहब्बत भी हो, औलाद से प्यार भी हो, लेकिन अगर हमारी औलाद गलत रास्ते पर जा रही है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रही है, तो सख्ती भी हो, दोनों चीजें हो। इसलिए मेरी बहनों, हम नमाज खुद भी पढ़े, अपनी औलाद को नमाज पर जमावे। 10 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, 11, 12, 13, 14 साल का बच्चा है, उस पर नमाज फर्ज तो नहीं हुई, लेकिन नमाज की प्रैक्टिस अभी से होगी तो बड़े होकर उसके लिए नमाज पढ़ना आसान बनेगा। इसलिए मेरी बहनों, ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। खुद भी नमाज पढ़े, और जब फजर का वक्त हो जाए, हमारे घर में कोई मर्द सोता हुआ न मिले, बाप को उठाकर मस्जिद में भेजे, शोहर को उठाकर मस्जिद में भेजे, भाई को उठाकर मस्जिद में भेजे, और अपने जवान औलाद है उनको उठाकर मस्जिद में भेजे कि मर्दों के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है।
तो ये काम हम आपको करना है। इसलिए मेरी बहनों, ये आपकी सारी जिम्मेदारी है कि खुद भी नमाज पढ़े, अपनी औलाद को नमाजी बनावे, नमाज के टाइम पे कोई काम न करे, पहले नमाज बाद में सारे काम। और नमाज मेरी बहनों सुकून के साथ पढ़े। नमाजी अल्लाह से बातें कर रहा है, हमारा अल्लाह हमारे सामने है, हमें देख रहा है, अल्लाह हमारी एक एक बात का जवाब दे रहा है। इस यकीन के साथ नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने में मजा आएगा, नमाज पढ़ने में सुकून आएगा, नमाज पढ़ने से दिल में मोहब्बत और सुकून पैदा होगी। तो खुद भी नमाज पढ़े, हमारे घर में कोई बेनमाजी न रहे। मेरी बहनों, ये फिक्र आपको करनी है। और ये कब होगा? जब हम अपने घर में तालीम को जिंदा करेंगे। हर एक के घर में किताब होती है, फजाइल आमाल, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है। तो जौन सी किताब आप पढ़ सकती हो, किताब मंगवाओ और 24 घंटे में से 10 मिनट निकाल कर बच्चों को लेकर बैठो। जब बच्चे सुनेंगे नमाज पढ़ने पर क्या मिलेगा, कुरान पढ़ने पर क्या मिलेगा, सच बोलने पर क्या मिलेगा, सहाबा ने कैसी कुर्बानियां दी है, सहाबा की औरतों ने कैसी कुर्बानियां दी है, ये ईमान इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है, जब ये सारी बातें इनके सामने आएगी तो उनके लिए दीन पर चलना आसान होगा, नमाज का पढ़ना आसान होगा, अल्लाह का खौफ आएगा, अल्लाह की मोहब्बत आएगी, कब्र का यकीन आएगा, आखिरत का इस्तिहजार आएगा, तो जिंदगी उनकी सही गुजरेगी। इसलिए मेरी बहनों, आप तमाम से मेरी गुजारिश है, अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बनाए, अल्लाह का खौफ पैदा करे, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के नबी की मोहब्बत हमारी जिंदगी सुन्नतों के मुताबिक गुजरे। पानी हम सुन्नत के मुताबिक पीवे, खाना सुन्नत के मुताबिक खावे, दस्तरखान और रात को सोना हो सुन्नत के मुताबिक सोवे। हर काम हमारा सुन्नत के मुताबिक होगा। इसमें इंशाअल्लाह बरकतें होगी, अल्लाह की रहमतें आएगी, घरों से बीमारियां दूर होगी, झगड़े दूर होंगे, मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बत पैदा होगी, सास बहू में आपस में प्यार पैदा होगा और घर में एक सुकून मिलेगा और घर हमारा जन्नत का बाग बनेगा। लेकिन शर्त है हम अपने घर में नमाज को जिंदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, 24 घंटे में से एक वक्त निकालकर कम से कम एक पारा पढ़ लिया करें। कुरान हमारी किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने हमें दी है। कुरान के बारे में क़यामत में पूछा जाएगा। और मेरी बहनों, चलते फिरते उठते बैठते खाना पका रही हो, कपड़े धो रही हो, तो दुनिया की बातों के बजाय हमारी जुबान पर दुरूद शरीफ हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना पढ़ना आसान है, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती जावे, काम करती जावे, तो इंशाअल्लाह दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। अल्लाह पाक इन बातों पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप तमाम के जुड़ने को कबूल फरमावे, आप तमाम के सुनने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए।